ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो दीक्षा बताना कि स्क्रीन ठीक से आ रही है कि नहीं। ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है, पावर पॉइंट दिख रहा है अभी। हाँ। हाँ। किसी का रिक्वेस्ट आया है फिर से, एक मिनट देखते हैं, एक को लास्ट एडमिट करता हूँ। ठीक है, और आ रहा है रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, लास्ट मिनट पे रिक्वेस्ट आ रहा है काफ़ी। ठीक है, अभी किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही? हाँ सर। ओके, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है अभी। प्रॉब्लम एक्सरे ट्यूब दिख रहा है? हाँ हाँ। Okay, now I am going to start. In last lecture, we have learnt about the characteristics X-ray. Okay, उसके पहले के लेक्चर में हमने continuous X-ray spectrum के बारे में पढ़ा. Now we will see one problem that is related to continuous X-ray spectrum. Okay, so the problem is this. Okay, we will take this problem and solution as well. So read this problem. An X-ray tube operates with accelerating voltage of 30 kV. 30 kV मतलब 30 kilovolt. Calculate the minimum wavelength of X-ray emitted. We have to calculate the minimum wavelength of X-ray emitted. So minimum wavelength of X-ray emitted हमने कहाँ पढ़ा था? डॉन हंट लॉ में पढ़ा था. Minimum wavelength is inversely proportional to the accelerating voltage. ये पढ़ा था. ठीक है, तो we have given here, what we have given? We have given this V, accelerating voltage 30 kilovolt. It means that 30,000 volt. It means if we convert it into this will be 3 into 10 raised to power 4 volt. Okay, so these things we have given, and we have to calculate this lambda minimum. Okay, we have to calculate lambda minimum. We have given accelerating voltage, that is 30 kilovolt. 30 means 30 kilovolts means 30,000 volt, 3 into 10 raised to power 4 volt. Okay, we know that according to डॉन हंट लॉ. ओके, डॉन हंट लॉ के हिसाब से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू डॉन हंट लॉ लैम्बडा मिनिमम is equal to 12420, 12,420 divided by voltage, accelerating voltage. This is in Armstrong unit. Okay, तो ये जो फॉर्मूला है लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू 12,420 डिवाइडेड बाय एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, दिस इज इन एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. इफ वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर देन इट विल बी 1.242 into 10 raised to power minus 6 meter. Okay, because 1 Armstrong is 10 to the power minus 10 meter. Okay, then we have put the value of this V. What is V? V is 3 into 10 raised to power 4 volt. So we have put this value 3 into 10 raised to power 4. Okay, now solve this equation, solve this formula. According to this formula, solve this, then divided by 1.242 divided by 3, it will be 0.414 into 10 raised to power minus 10 meter. So lambda minimum in meter it will be 0.414 into 10 raised to power minus 10 meter. Okay, if we convert into the Armstrong, minus 10 to the power minus 10 meter means Armstrong. So in Armstrong it will be 0.414 Armstrong. So minimum wavelength of X-ray emitted would be 0.414. It means 0.414 Armstrong unit. This is very simple problem. This is the solution of this problem. Very simple. You only have to remember the formula lambda minimum equal to 12,420 divided by accelerating voltage. ओके, ये फॉर्मूला तुम्हें रिमेंबर रखना है. तो ये इजी सॉल्यूशन आता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. दो इसी टाइप के और एक दो प्रॉब्लम्स
इसी टाइप के आते हैं। तो तुम्हें अगर ये प्रॉब्लम और ये फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 मार्क्स, वेरी 2-3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द मोस्लीज लॉ। ओके, मोस्लीज लॉज पढ़ेंगे हम। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम जब डिस्कवर्ड हुआ, ओके, तो उसके बाद मोस्टली हेनरी मोस्ली नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे होता है, जब हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज देते हैं, टारगेट पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं और एकदम एटम के शेल में जाके इनर शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो मोस्ली ने क्या किया, मोस्ली ने 1913 में ये लॉ दिया, मोस्लीज लॉ। उसने क्या किया कि डिफरेंट टारगेट्स, he used different targets for experimenting on characteristics x-ray. He used different targets of different elements, molybdenum लिया, कॉपर लिया, कोबाल्ट लिया, अलग अलग एलिमेंट से उसने एक्सपेरिमेंट किए टारगेट्स पे। ठीक है, मोस्टली इन 1930 कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन फ्रॉम वेरियस टारगेट एलिमेंट्स। बहुत सारे अलग अलग टारगेट एलिमेंट्स यूज किए, कॉपर, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर, ऐसे अलग अलग टारगेट्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये फाइंड आउट किया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज होती है, जो एक्सरे इमिट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट। मतलब जो टारगेट एलिमेंट यूज कर रहे हो, अगर मोलिब्डेनम यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, कोबाल्ट यूज कर रहे हो, तो जो उसका एटॉमिक नंबर मतलब Z। So what decide the atomic number? The number of protons in the particular atom or number of electrons in the particular atom decides the atomic number. Okay. So he found that the frequency, जो frequency X-ray की होगी, frequency is related to energy, frequency is related to wavelength, means frequency या energy या wavelength that depends upon the atomic number of target elements. Okay. So frequency या energy या wavelength of X-ray that depends upon the atomic number of target element Z. Nu is depend upon Z. ये किसने प्रूफ किया, किसने दिया लॉ, हेनरी मोस्ली ने। ही कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट टारगेट एलिमेंट्स। ओके, सो ही गेव द expression, this is the statement of Mosley law, the frequency of spectral line of X-ray. Which spectral line? Characteristic X-ray. Characteristic X-ray line में क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन होती है। लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर वो एक रेंज पे जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो आ रहा है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जो आ रहा है, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। सो ही quoted the statement, the frequency of spectral line in X-ray spectrum is varies as a square of atomic number. मतलब frequency और atomic numbers are interrelated. Frequency of X-ray is depends upon the atomic number of element emitting it. कौन सा element emit करता है, टारगेट एलिमेंट। एक्सरे कहाँ से निकलती है, टारगेट से। इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से आती है, कैथोड से। स्ट्राइक कहाँ करती है, क्या टारगेट पे, एनोड पे, और एनोड से एक्सरे निकलती है। ठीक है, तो एनोड ही क्या करता है, एक्सरे इमिट करता है। ओके, टारगेट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, इट मींस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इमिटिंग इट। देन ही गेव द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, द एक्सप्रेशन सेज दैट frequency is directly related to the square of atomic number Z minus B square. अब B कहाँ से आया, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे तो डिपेंड है फ्रीक्वेंसी। दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट Z, Z मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बट उसने क्या किया, एक फिर से एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया B, Z माइनस B। अब B क्यों इंट्रोड्यूस किया, B को इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब था, B मीन्स व्हाट, ये देखो, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट, एंड B इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को एक्सप्रेशन में उसने यूज क्यों किया। एटॉमिक नंबर का तो ठीक है कि न्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर, स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर, बट उस स्क्वायर वाली टर्म में उसने माइनस B स्क्रीनिंग कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस किया। सो व्हाट इज, व्हाई ही नीड टू इंट्रोड्यूस द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्यों उसने स्क्रीनिंग कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। अगर हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद इक्वल टू लगाने के बाद क्या आता है, कांस्टेंट. सो वो एक्सप्रेशन वुड बी न्यू इक्वल टू के जेड माइनस बी होल स्क्वायर. अब व्हाट इज बी? बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बट व्हाई ही नीड टू इंट्रोड्यूस द टर्म बी. ओके, तो पढ़ेंगे बी एक्चुअली होता क्या है, ये बताऊंगा. स्क्रीनिंग कांस्टेंट. सो ये देखो, ये है न्यूक्लियस. ओके, और ये है इनर शेल, ये है आउटर शेल. ओके, ये है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन. तो क्या होता है, न्यूक्लियस और एटम में दो जो होते हैं, दो काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं, दो काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं. एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन. ठीक है, अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज. सो न्यूक्लियर को क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. सो दीज प्रोटॉन्स एंड दीज पॉजिटिव चार्ज ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. सो द electron and the negative charge electron and the positive charge nucleus have some effective nuclear charge. इसको बोलते हैं effective nuclear charge. The charge between the nucleus and electrons, outer electrons, they are effective nuclear charge. और दूसरी चीज है, एक होता है रिपल्शन. अब रिपल्शन किस, ये हो गया अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन. एक होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपल्स करता है. क्यों? both are the negatively charged. Okay, this electron is negative charge, this also inner shell electron is also negative charge. Both electrons try to repel each other because the charge is same, and this repulsion is called screening effect, और सेकेंड नेम इज द शील्डिंग इफेक्ट. इसी को शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे. मतलब द रिपल्शन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. Okay, and the attraction between nucleus and outer electron, that is called effective nuclear charge. attraction को effective nuclear charge बोलेंगे, repulsion जो होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में उसको बोलेंगे screening effect. So effective nuclear charge और screening effect को जब हम माइनस करते हैं, the difference between the nuclear effective charge और screening effect, then we will get one parameter that is called screening constant. इसलिए हर एलिमेंट का screening constant अलग होता है, डिफरेंट होता है. स्क्रीनिंग कांस्टेंट का टर्म उसने उस इक्वेशन में इसलिए डाला क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एलिमेंट बदलते जाएगा. ठीक है, हर कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं होता, और जैसे जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के हिसाब से, रो के हिसाब से चलते हो, एटॉमिक नंबर चेंज होते रहता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसलिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो उसको उस पैरामीटर उस इक्वेशन में डालना पड़ा, बिकॉज जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होंगे, जैसे जैसे एलिमेंट्स को तुम वेरी करोगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वेरी होगा. और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट. न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का डिफरेंस जब तुम लोगे तो क्या मिलेगा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट. एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर और आउटर शेल का रिपल्शन को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. न्यूक्लियस और आउटर शेल के अट्रैक्शन को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्लियर? सो दिस बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट and z is atomic number and k is proportionality constant. Okay, so frequency of this radiation, x-ray radiation or x-rays are directly related to z minus b whole square. Z is atomic number, b is screening constant, k is proportionality constant and nu is frequency of x-ray emitted. Okay, now we will see the graphical representation of Moseley's law. Moseley's law ने ग्राफ कैसे बताया कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ कैसे होता है और किस तरीके से एक्सरे लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ले लॉ के टर्म्स में. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, वी नो द इक्वेशन, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मोस्ले लॉ. ओके, नाउ व्हेन वी विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगा k इज प्रोपोर्शनैलिटी constant. Then equation become nu equal to k z minus b whole square. Now taking square root on both sides, सभी दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट ले लिए तो ये स्क्वायर हट जाएगा. Then the equation become this square root
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन इक्वेशन बिकम न्यू को अंडर रूट न्यू, के भी अंडर रूट में चले जाएगा, देन स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लिया, तो दिस विल बी z माइनस बी ब्रैकेट में. नाउ वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट वी विल गेट दिस वन. ओके ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं किया, तो फिलहाल न्यू स्क्वायर रूट को मैं लिख रहा हूं 1/2 हाफ. स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज द पावर हाफ. ओके, न्यू पावर हाफ, के पावर हाफ. ओके, सेम, nothing is changed, only I have changed the sign of root to the power of half. okay, न्यू का पावर हो गया हाफ, हाफ मतलब रूट, k का पावर हो गया हाफ, z माइनस बी. नाउ वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, न्यू हाफ इज इक्वल टू k हाफ, k टू द पावर हाफ इंटू z, k टू द पावर हाफ इंटू b. ओके, न्यू हाफ इज इक्वल टू k टू द पावर हाफ इंटू z, ब्रैकेट सॉल्व किया, माइनस k टू द पावर हाफ इंटू b. अभी k क्या है, कांस्टेंट है, b भी क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट. कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. ओके, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट k टू द पावर हाफ इज कांस्टेंट, b इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट. लेट अस सपोज दैट अगेन b, दिस कांस्टेंट इंटू मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू b. सपोज अगर 1 इंटू 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू 2 4 होता है, अनदर कांस्टेंट दैट इज नॉट वेरिएबल. ओके, दिस कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट b. तो k टू द पावर हाफ इंटू b को हम b लिख सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. ओके, सो इट विल बी न्यू टू द पावर हाफ इज इक्वल टू k टू द पावर हाफ इंटू z माइनस b. कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. ओके, नाउ दिस लुक्स लाइक द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. कैसे, ये देखो न्यू क्या है, वेरिएबल, न्यू चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है z, एंड k क्या है, कांस्टेंट है. तो ये वेरिएबल है z और न्यू वेरिएबल है, दो वेरिएबल है. ठीक है, सो दिस इक्वेशन वी कैन रिलेट टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. कैसे, तो अब देखो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर c 0 रहा तो लाइन कहां से जाती है, ओरिजिन से, y इज इक्वल टू mx. c रहा तो लाइन ओरिजिन से नहीं जाती है, दैट वुड बी x इंटरसेप्ट. सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन हमको पता है. अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. तो y क्या है, न्यू टू द पावर हाफ, वेयर y इज इक्वल टू न्यू टू द पावर हाफ, एंड x क्या है यहाँ पे, z इज वेरिएबल, एटॉमिक नंबर इज वेरिएबल, x इज z, and slope m क्या है, this constant, slope is constant, that's why m is in this equation. If we compare this equation to this equation, m is what, k to the power half. okay, and the intercept c plus c अगर इक्वेट करेंगे तो c मतलब यहाँ क्या हो गया, b मतलब माइनस b. okay, so this equation is looks like a equation of straight line. and which is the equation of straight line, y is equal to mx plus c. if we compare this equation with this, y is this, x is z, m is slope is k to the power half and intercept is minus b. so Moseley law का जो ग्राफ आएगा that would be the straight line. ओके, कैसे ये सॉल्व, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लाया. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलता है कि y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, v न्यू टू द पावर हाफ, x कोऑर्डिनेट रहेगा z, स्लोप रहेगा k टू द पावर हाफ और इंटरसेप्ट क्या रहेगा, माइनस b रहेगा इंटरसेप्ट. ओके, तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा, ये देखो, ये है x एक्सिस पे क्या रहेगा, z एटॉमिक नंबर, ये देखो x क्या है, z एटॉमिक नंबर. अब y एक्सिस पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, दिस y एक्सिस पे रहेगा न्यू टू द पावर हाफ. और जो ग्राफ बनेगा मोस्ली लॉ का जो ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ कैसे बनेगा, मोस्ली लॉ का स्ट्रेट लाइन. ये देखो, ये है स्ट्रेट लाइन. अगर तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक लाइन के बीटा है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा. अब ये ओरिजिन से पास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट है c. अगर y इज इक्वल टू mx होता, अगर ये b नहीं होता तो दिस ग्राफ शुड बी गॉन फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन अगर इंटरसेप्ट नहीं होता. लेकिन इंटरसेप्ट है इसलिए वो x एक्सिस को कट कर रहा है. दिस c इज x इंटरसेप्ट. ओके, अब के बीटा का ग्राफ इस तरीके से आएगा और के अल्फा का ग्राफ इस तरीके से आएगा. और ये जो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा दैट वुड बी b. ये देखो इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे b है. ओके, सो दिस इंटरसेप्ट वुड बी b.
ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोस्ले लॉ। हमने उसके इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन जो है न्यू टू द पावर हाफ इज इक्वल टू के टू द पावर हाफ इंटू जेड माइनस बी, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। इसलिए ये जो ग्राफ मिलेगा जेड वर्सेस न्यू हाफ का स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से नहीं जाएगी, ये दो लाइन से के अल्फा के बीटा। हर एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन के लिए अलग अलग ग्राफ मिलेंगे, लेकिन ग्राफ का नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन ही मोस्ले लॉ का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, बट स्ट्रेट लाइन दे विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन बिकॉज इट कंटेन्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है? माइनस बी, दैट इज बी। ओके, जेड वर्सेस न्यू टू द पावर हाफ का ग्राफ इस तरीके से रहेगा। ओके, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोस्ले लॉ। मोस्टली ने ये बताया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे रेडिएशन जो भी होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, जेड पे। दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन जेड, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अभी क्या हो गया? मोस्ले लॉ के बाद जो आगे का जो भी डिस्कवरीज थी और आगे में जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो गई। एटॉमिक नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। मोस्ले ने हर एक एलिमेंट का यूज़ करके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये फाउंड किया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो इसके बाद क्या हो गया? इसके मोस्ले के पहले मैक्सिमम क्या लोग साइंटिस्ट का सोचना क्या था कि एटम्स का एटॉमिक वेट इंपॉर्टेंट होता है, एटॉमिक नंबर से उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मोस्ले ने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया और एटॉमिक नंबर बोला कि एक्सरे के फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, तो सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो गया एटॉमिक नंबर्स के तरफ और एटॉमिक नंबर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। उसके पहले एटॉमिक वेट का इंपॉर्टेंस था। सो मोस्ले के पहले मोस्ले ने 1913 में 1913 में ये लॉ दिया। 1913 के पहले 1869 में मेंडलीफ नाम के साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाया था और पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद उसने जो एटम्स थे, उसने जो एलिमेंट्स थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किए थे। तो तभी को लगता था कि एटॉमिक वेट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। लेकिन मोस्टली ने जब 1913 में ये डिस्कवरी की, ये इक्वेशन दिया, तो उसके बाद पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर्स में। ओके, और अब तक पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर्स में ही अरेंज है। तो एटॉमिक नंबर्स का इंपॉर्टेंस कब बढ़ा? मोस्टली के ये लॉ देने के बाद। ओके, उसके पहले एटॉमिक सब साइंटिस्ट एटॉमिक वेट को ही ज़्यादा मानते थे और बोलते थे कि मैक्सिमम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। मोस्टली के डिस्कवरी के बाद सारा का सारा पीरियोडिक टेबल चेंज हो गया, सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया। मोस्टली का कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को एक प्रॉपर वे में अरेंज करने का कंट्रीब्यूशन मोस्टली को जाता है। उसने कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए और बहुत सारे एलिमेंट्स की पोजीशन को रीअरेंज किया, जो कि पहले एटॉमिक वेट के फॉर्म में अरेंज थे, बाद में एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज हुए इस मोस्टली के लॉ देने के बाद। ओके, तो मोस्टली के लॉ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस ये है, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली ने बोला कि एलिमेंट्स के ज़्यादातर प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करती है। ओके, सो वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। मोस्टली इस लॉ का इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक वेट विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अभी बताया मैंने कि मोस्टली के लॉ का एक इंपॉर्टेंस है कि एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, एटॉमिक वेट नहीं। ओके, इसलिए डायरेक्ट मोस्टली ने बोला। और एटॉमिक नंबर क्या होता है ना? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, सो द एटम्स इन द पीरियोडिक टेबल शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो मोस्टली के लॉ के बाद मोस्टली का लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्टली ने बोला कि एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके पहले साइंटिस्ट मानते थे कि एटॉमिक वेट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है। लेकिन मोस्टली के लॉ के बाद मोस्टली ने बोला कि पीरियोडिक टेबल के जो एटम्स है, इट शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स बिकॉज एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो
what he did using this law mostly corrected the position of argon, cobalt, tellurium in the periodic table. पहले क्या था periodic table में argon, cobalt और tellurium जैसे एलिमेंट्स को कैसे एटॉमिक वेट से अरेंज किया था. मोस्टली ने उसके पोजीशंस को करेक्ट किया और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया. और क्या होगा कि मोस्टली के डिस्कवरी के पहले, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मोस्टली लॉ के देने के पहले, मोस्टली लॉ के इंट्रोडक्शन के पहले, मोस्टली लॉ की डिस्कवरी के पहले एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज थे. सो देखो निकेल और कोबाल्ट, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, कोबाल्ट का 27 है. तो मोस्टली के लॉ के पहले मेंडेलीफ ने क्या किया था, निकेल को कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58 है और निकेल का 58.7 है और कोबाल्ट का 58.9 है. तो मेंडेलीफ ने क्या किया था, निकेल को कोबाल्ट के पहले रखा था. निकेल पहले प्लेस किया था, फिर कोबाल्ट प्लेस किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट. बट मोस्टली ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया और कोबाल्ट को निकेल के पहले रखा. ही प्लेस्ड कोबाल्ट बिफोर निकेल. He rearranged the position of nickel and cobalt according to their atomic numbers. Because उसके पहले सारे के सारे एलिमेंट्स एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज थे. मोस्टली ने एटॉमिक नंबर्स को इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि सारे के सारे प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करता है, ऐसा मोस्टली ने बोला. और मोस्टली ने मैक्सिमम पोजीशन जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में रीअरेंज की, चेंज की अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स. इसलिए मोस्टली का कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल में है अरेंज करने के एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. तो ये देखो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है. तो मोस्टली ने क्या किया, ये अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अभी लेटेस्ट वाला पीरियोडिक टेबल है. दिस एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर्स. ये सारे के सारे एटम्स पीरियोडिकली अरेंज है, पीरियड वाइज अरेंज है एटॉमिक नंबर से. मोस्टली ने आर्गन, टेलुरियम, ये जो दिख रहा है ना पोजीशन आर्गन की यहाँ, टेलुरियम की यहाँ और कोबाल्ट की यहाँ, ये मोस्टली ने प्लेस किया इस पोजीशन को बराबर ठीक जगह पे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. ही करेक्टेड द पोजीशन ऑफ आर्गन, टेलुरियम. आर्गन को बराबर इनर्ट गैस एलिमेंट्स के ये जो है कॉलम में थर्ड पोजीशन पे रखा ऊपर से नीचे. टेलुरियम को स्पेसिफिक पोजीशन पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया. कोबाल्ट को भी ठीक उसी पोजीशन पे रखा अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. ओके, एज वेल एज ही हैज करेक्टेड. पहले क्या किया, पहले मेंडलीफ ने क्या किया था, निकेल को इधर रखा था, कोबाल्ट को यहाँ रखा था. निकेल को पहले रखा था, कोबाल्ट को बाद में रखा था. लेकिन मोस्टली ने कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. बिकॉज कोबाल्ट एटॉमिक नंबर इज 27 एंड निकेल एटॉमिक नंबर इज 28. सो निकेल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर कोबाल्ट. तो इस तरीके से मोस्टली ने कोबाल्ट और निकेल की पोजीशन को भी करेक्ट किया. साथ साथ में मोस्टली ने क्या किया, ये दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक है हाफमियम और एक है रेनियम. ये HF और रेनियम, ये दो एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया पीरियोडिक टेबल में. ये पहले एलिमेंट नहीं थे और इस एलिमेंट को भी इस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया. HF और RE पहले नहीं थे पीरियोडिक टेबल में. ये दोनों एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो जाता है मोस्टली को, HF और RE को भी उसने. तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल का फेस चेंज किया, पीरियोडिक टेबल का शक्ल चेंज किसने की, मोस्टली ने. एंड ही हैज अरेंज्ड द एटॉमिक नंबर, अरेंज्ड द एलिमेंट्स in the order of increasing order of atomic number. So this is the importance of Mosley. Mosley explained the atomic masses does not determine atomic weight, chemical property determine नहीं करता है. Hence they should be placed on the basis of atomic number. उसने बोला कि atomic numbers के फॉर्म में अरेंज करो, इसलिए उसने करेक्ट भी की पोजीशन निकेल और कोबाल्ट की, अभी बताया मैंने. ओके, और दो एलिमेंट्स उसने इंट्रोड्यूस किए, हाफमियम और रेनियम इंट्रोड्यूस इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मोस्टली लॉ. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोस्टली लॉ. ठीक है, तो मोस्टली लॉ का ये इंपॉर्टेंस है. क्वेश्चन ऐसा आएगा कि स्टेट द मोस्टली लॉ. ठीक है, तो स्टेट करने से उसका स्टेटमेंट देना है. ओके, और फिर स्टेटमेंट देना है ये वाला. और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट एक्सप्लेन पूछा तो एक्सप्लेन करते वक्त ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना है. स्टेट एंड एक्सप्लेन बोला, स्टेटमेंट भी देना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना है. और बोला कि स्टेट मोस्टली लॉ एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट्स देना है. ठीक है, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मोस्टली लॉ. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड the portion of X-ray. Today we have taken one problem, very easy problem, 2 marks problem. Okay,
when I share the notes of the related to this lecture, then I will give one practice problem. Okay, inside that notes you can try at your home. Okay, similar to this problem, I will give the similar one to two problems in practice notes. Okay, और हमने देखा कि मोस्टली लॉ क्या है, और मोस्टली लॉ में फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे रेडिएशन वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शन होता है. ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है ये भी मैंने समझाया. ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी देखा. स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्शन बिटवीन इनर शेल एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज रिलेटेड टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट. मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को जब हम डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जो पैरामीटर मिलता है दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट. बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. दैट्स व्हाई मोस्टली पुट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट इन हिज एक्सप्रेशन. ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जो हमको मिला, ये इक्वेशन सॉल्व कर करके जो चीज़ मिली दैट इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, it means that frequency of X-ray radiation, frequency of X-ray depends on atomic number, and it will give the graph straight line, and this straight line is not passing through the origin. This straight line intercept the x-axis, that intercept is b, because the equation is y is equal to mx plus c and intercept is b. Z is x axis parameter and nu is y axis parameter, and k half is slope. अगर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या मिलेगा, k रेस्ट टू पावर हाफ. ओके, ये मिलेगा. ओके, और इम्पोर्टेंस पढ़ा है. ओके, इट इज टुडे इट्स ऑल अबाउट द वन प्रॉब्लम एंड मोस्टलीज लॉ. सो हियर वी कंप्लीट द पोर्शन ऑफ रिलेटेड टू द X-ray spectroscopy. In last lecture we have studied the characteristic X-ray, and before that last lecture we have studied the continuous X-ray spectrum. Okay, तो आज मैं continuous और characteristic X-ray के नोट्स गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा. ठीक है, और इसके पहले मैंने X-ray के इंट्रोडक्शन के नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर दिया. ठीक है, तो अगर तुमको कुछ समझा नहीं होगा तो रिकॉल कर सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर से, और मटेरियल भी मैंने शेयर कर दिया गूगल क्लासरूम पे. ठीक है, तो वो मटेरियल अपने पास डाउनलोड करके सेव रखते जाओ, और जब भी टाइम मिला उसको अच्छे से पढ़ते जाओ. बहुत इजी वे में मैंने मटेरियल डिज़ाइन किया, खुद ही बनाया है, तो उसको अच्छे से पढ़ो. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीक वी विल स्टडी अबाउट द रमन इफेक्ट. ओके, सो अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो. एनी क्वेरीज? आज का इजी पोर्शन था मोस्टली लॉ से रिलेटेड, और एक प्रॉब्लम था, तो उसमें कोई डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो पूछो. एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी स्टूडेंट्स? अगर पूछने में शर्म आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वॉइस तो आ रही है ना मेरी? हेलो दीक्षा, लेक्चर में कंटिन्यूस वॉइस आ रही थी ना स्मूथली? ओके ओके, तो प्रेजेंटेशन दिख रहा था ना कंटिन्यूस? ओके ओके, सो एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? नो सर. ओके, सो सिंस देयर इज नो क्वेरी, सो अभी मैं नेक्स्ट मतलब ट्यूसडे को हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और ये यूनिट जब एंड होगा तो उसके बाद मैं कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चन भी ग्रुप में भी मैं क्वेश्चंस शेयर करूंगा, और गूगल क्लासरूम में भी. तो गो थ्रू दैट क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम. ओके, आई विल गिव यू 15 to 20 days टू सबमिट द असाइनमेंट. तुम या तो तुम वर्ड फाइल में या पीडीएफ बना के सबमिट कर सकते हो गूगल क्लासरूम में, या फिर तुम्हारे पास मोबाइल होगा तो कुछ लिख के रिटर्न नोट्स बना के उसकी फ़ोटो लेके तुम गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हो. तो दैट असाइनमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर द इंटरनल असेसमेंट. ओके, और ये यूनिट खत्म होने नेक्स्ट वीक वी विल फिनिश दैट यूनिट. ओके, आफ्टर फिनिशिंग दैट यूनिट्स आई विल गिव द असाइनमेंट एज वेल एज आई विल कंडक्ट वन यूनिट टेस्ट. ओके, यूनिट टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ
MCQ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, उसके यूनिट टेस्ट मैं लूँगा तुम्हारी, तो उस यूनिट टेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म, ओके। तो उस यूनिट टेस्ट की भी लिंक मैं शेयर करूँगा, देन आई विल गिव 45 मिनट्स, ओनली 20 क्वेश्चंस विल बी देयर। सो यूनिट टेस्ट यानी उससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है कितना हुआ है वो नॉलेज आ जाएगा उस हिसाब से। तो ये दो, एक असाइनमेंट और दूसरा यूनिट टेस्ट लूँगा, तो ये दोनों दिस टू आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरनल असेसमेंट, ओके। तो सारे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारा असाइनमेंट एज वेल एज यूनिट टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जिससे तुम्हारा कैसे पढ़ाई भी रिकॉल हो जाएगी, और जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा उसी में से क्वेश्चंस, वो मटेरियल तुम अच्छे से पढ़ लो, उसी में से तुम्हें क्वेश्चंस, यूनिट टेस्ट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ में असाइनमेंट्स के, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सारा मटेरियल जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। तो बस तुमको अभी, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुमको बस अभी पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट, ओके। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, देन वी विल मीट ऑन next Tuesday, on upcoming Tuesday, okay. So bye and have a nice day.